Good morning everyone. Welcome back to my class. Student, today we will see some basic programs in Blue Java. Actually, it is given in ICSE board syllabus. So we'll pay attention on the Blue Java. Fine. Here I will teach you how you can write all these programs in especially Java also, as well as how you can do all these programmings by using the techniques of command line argument. But we will pay first attention on the how we have to write any programs in Blue Java. Is that clear? So we have first programs. Get ready to learn with me Blue Java programs. Fine. We have first program, student, and that is how you have to print any message in Java. Supposed to be you have to write a program in Java or Blue Java, that is write program in Blue Java to print hello Java. To print hello Java. So how you will write? First thing, we will mention class. What we will mention? Class. It's your keywords, and as we know that about the keywords, keywords cannot be used like a variable. So I have taught you already, class will be user defined. So here you will mention the class and class name. Supposed to be I have given class name hello. What I have given? Hello. Fine. After that we mention curly opening braces. Students, just pay attention and try to learn each and every steps. Okay? If you will pay attention, definitely you will get the Blue Java programming and you will not face any kind of problem. So what we have to do over here, we'll declare first what is the method to write the Java programs in Blue Java. Class and class name. What I have declared? First we will declare class and class name. What class name I have given? I have given the class name hello. What I have given? Hello. After that we will place curly opening braces. After that you can mention public void main. Okay? You will write public void main. I will tell you later the meaning of public. The meaning of public means actually the class members will be accessible within the class as well as outside the class. Students, just pay attention. The meaning of public, the class member will be accessible within the class as well as outside the class. After that, again you will mention curly opening braces. Fine. And what we have to print? Hello Java. So in Blue Java, we have one method that is called system.out.println. Fine. System.out.println to print any type of message or any type of value. So how we will write? We will mention system. In system, S will be capital. You will never forget because it's a case sensitive language. It is given the features of the Java, characteristics of the Java, because characteristics of Java, it is given, it is mentioned over there. It is your case sensitive language, and in case sensitive language we will have to pay the attention on the where we have to write the capital, where we will have to write the small letter, because it works according to the case sensitive. Fine, or it works according to that. So in system we will place S as a capital letter. We will write system dot out dot print ln. Is that clear? Print ln. You can write only print also. What would be the difference between print and print ln? Once you will mention the print ln, your cursor will be transferred in the new line. If you are giving only print, then your cursor will be as it is in the same line. Is that clear? Now, your message style, hello Java. So, it's your string. It's your string. And as we know that student, string is a collection of
characters. So string will be always denoted in double quotes. It will be always denoted in double quotes. Exactly. And while character will be always denoted in single quotes. So here we will mention hello Java. Is that clear? Semicolon. After that we will close both opening braces. Class will be closed and main part will be closed. Any problem? What is the method to write the Java programs? So over here we will mention first class and class name. Pay attention, you all will get it very properly. Class and class name. After that public void main. I told you about the public. The meaning of public is that the class members will be accessible within the class as well as outside the class. Here, if you had to print any kind of message, we use one methods, that is your system.out.println, and if your message type is string, then you will mention in double quotes hello Java. If it is given in the form of characters, you will use single quotes. After that, we will close both curly opening braces. Is that clear? After that, you will click on the compile. Your compilation process will be done. You all are knowing how you have to execute it. Fine. So it was the program about to print any message, and the message was hello Java. Is that clear? Now we will pay attention on the numeric types of programs. Student, we have the next program, write a program. First program or second program you can say. I am going to write a program in Glue Java to find sum of two number. To find sum of two number. So student, you will pay attention to find sum of two number means both numbers should be any it should be any type of number. Okay? It should not be any constant value. Why I am using this word I am telling you, because once we design any program, the program purpose should be global. Okay? So if we are going to write the programs related to sum of two number, so if we are giving any kind of two number, any type of two number, the program should add it. Okay? So if I am giving 2 plus 2, the result should come 4. If I am giving 5 plus 6, the result should come 11. Okay? So the program flexibility should be, it supports or it should support any kind of two number. So you will always keep in your mind, if you are writing any program, so what you will do, you will write the programs to find sum of two number, and that two numbers could be any number. It's very easy. It's very simple, and just trying to make our conversations in linear manner. So how you will do? आप कैसे करोगे इस चीज को? किसी भी दो नंबर को ऐड करना है. किसी भी दो नंबर को ऐड करना है. So what should be the method? Student, just pay attention. We will mention class. What we will mention? Class and class name. Supposed to be I have given the class name sum. What I have given? Class name sum. Fine. After that, curly opening braces. Again you will use public void main, and here you have to use two arguments or two variables. Student, why we are using variables? Because as we know that the nature of the variables could be vary at runtime. Basically it supports any types of values. That's why we use variables in our programs. In maths we have two types of values. Math means constant value and variable values. So why we are using variable values in our programs? Because of variable can accept any types of numbers, and इसके वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? हमेशा वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है रन टाइम पे.
Now, I am talking about to find sum of two number. So, we'll have requirements of two variables, integer a, comma, integer b. Pay attention. I have given two variables, that is your a and b. और दोनों का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर टाइप का है. इट मीन्स बोथ विल एक्सेप्ट ओनली इंटीजर वैल्यू, नॉट डेसिमल वैल्यूज, नॉट फ्रैक्शनल पार्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? And I have already discussed about the data type with you, student. So here I have given integer a, comma, integer b. Is that clear? Now again I am going to open it. We'll take third variable, integer c. Why I have taken third variable? Because after adding a plus b, the result will store in c. अगर आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो, सपोज करो कि मैंने a की वैल्यू 5 दिया और b की वैल्यू 10 दे दिया, तो दोनों नंबर को जब आपस में ऐड करोगे, आप 10 प्लस 5 करोगे, तो रिजल्ट जो होगा वो थर्ड प्लेस पे स्टोर होगा. और थर्ड प्लेस हमारा कौन सा डिफाइन हो गया? वो आइडेंटिफायर हमारा कौन सा हो गया? यहाँ पे c हो गया. क्या हो गया? c हो गया. तो अब हम लोग करेंगे क्या है यहाँ पे? c इक्वल टू a प्लस b. c इक्वल टू a प्लस b. इसका मतलब क्या हो गया? a प्लस b का जो रिजल्ट होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? c में स्टोर हो जाएगा. क्लियर है? नाउ वी हैव आउटपुट इन c. वेयर वी हैव? इन c. सो वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ c. व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट? वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ c. सो वी विल राइट system dot, never forget to give s as a capital. Okay, system dot out dot println. सपोज करो कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो, इसके साथ क्या मैसेज होना चाहिए? द सम ऑफ टू नंबर. द सम ऑफ टू नंबर विल बी योर स्ट्रिंग टाइप. और जैसा कि मैंने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू, कि स्ट्रिंग विल ऑलवेज डिनोटेड इन डबल कोट्स. इसको हमेशा किस में मेंशन करोगे? डबल कोट्स में. तो आप यहां पे दे सकते हो द सम ऑफ टू नंबर इज डबल कोट्स. यहां हम लोग एक ऑपरेटर करते हैं, इट विल कॉन्केटिनेट टू वैल्यूज. टू वैल्यूज मीन्स इस मैसेज के साथ हमें c की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्लस. क्या यूज करना पड़ेगा? प्लस यूज करना पड़ेगा. और यहाँ पे आपको c मेंशन करना पड़ेगा और दोनों को क्लोज कर दोगे आप. ये एक ही साथ होगा एज इट इज. आई डोंट हैव स्पेस टू मेंशन इन वन लाइन, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन लाइक दिस. ओके, तो आप एक ही साथ लिखोगे द सम ऑफ टू नंबर इज, फिर डबल कोट्स प्लस c. तो ये कॉन्केटिनेट करेगा. कॉन्केटिनेट का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना, जोड़ना. ओके, इट विल कॉन्केटिनेट दिस मैसेज विद दिस वैल्यू. द सम ऑफ टू नंबर इज, ये आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा. और c की वैल्यू क्या होगी? जो आप a और b में दोगे, उन दोनों को ऐड करके किसमें स्टोर कर देगा? c में कर देगा. सपोज टू बी आई हैव गिवन द वैल्यू ऑफ a 6 एंड द वैल्यू ऑफ b इज योर 7. तो 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा. और जब c प्रिंट होगा तो एक मैसेज के साथ प्रिंट होगा. वो मैसेज क्या होगा? द सम ऑफ टू नंबर इज 13. द सम ऑफ टू नंबर इज 13. Any problem? So this is the simple programs I have written on your board and you will get it. Fine? You will go through these programs and you will try to attempt how you have to write the programs in Blue Java. So we have simple methods to write any programs in Java, and that is your first we will declare the class, and after that class name. After that, public void main, give the variables, integer a comma integer b, integer c equal to a plus b. After that we have to print the values. Clear है? अगर इसी को सिंपल जावा में आप केवल लिखते, ब्लू जे की बात मैं नहीं कर रहा हूं. ओके, अगर ब्लू जावा की बात नहीं करते तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग args, फिर हम लोग डिक्लेयर करते वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे. ओके, और उसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी यूज कर लेते. इसके अलावा इंस्टेड ऑफ दिस एक और मेथड्स होता है इसी प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए, जिसको कहते हैं हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की प्रोग्रामिंग. ओके, उसमें भी सारी चीजें ऐसे ही होती है. पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग args. उसके बाद हम करते क्या यहाँ पे? a इक्वल टू इंटीजर डॉट पास int. सबको हम आर्गुमेंट्स में कन्वर्ट करते जाते, इंटीजर में कन्वर्ट करते जाते. क्लियर है?
तो ये सब मेथड्स मैं आगे आपको बताऊंगा कि किसी भी प्रोग्राम्स को 2-3 तरीके से आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, या केवल जावा में लिखना है इसके लिए जावा में कैसे डेवलप कर सकते हो, अगर उसी प्रोग्राम्स को कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के थ्रू आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसका क्या अप्रोच हो सकता है। फिलहाल यू गाइज विल पे अटेंशन ऑन द ब्लू जावा। इज दैट क्लियर? नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। Next programs will be your write program in Java or Blue Java to find area or circle. Area or circle. Fine? What we had to find out? Write program. Write program. Now I'm going to write like this. Write program in Java or Blue Java. BJ. BJ means Blue Java. To find area of circle. Area of circle. Student, what is the formula to find out the area of circle? Pi r square. We have pi r square. Pi r square. So what would be the value of pi? You may write 22/7 and r square you can write r into r, or you can directly write 3.14 into r into r. Any problem? So if we have to find out the area of circle, what we will have to enter first? We will have to enter the radius of the circle. Fine? Radius of the circle. So student will write class and class name. So class name I have given circle. But I have given circle. After that, public void main. Here the value will come in the fractional part, so you can declare the float or you can take the double. Okay, supposed to be I have given double. Then what we will enter? Radius. What we will enter? Radius. You can place on the place of double also float. Okay, float r. So float r means I am going to input the radius and the value will be entered in, or the output will come in the form of fractional part. Clear? So now I have entered already r means radius. R will act like a radius. So here we will give double area. We will calculate area. We will calculate area. So what is the formula? Area equal to pi r square. Pi r square. So we can put the value like there, 3.14 into r into r. You can write r square, you can write r into r, and the value of pi 22/7 or 3.14. So you will have to mention like this. जो रिजल्ट होगा वो हमारा किस में स्टोर होगा? एरिया में। और एरिया का डेटा टाइप हमने क्या दिया है? डबल टाइप का। तो अब इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करने का हमारे पास मेथड क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अगर आपको फिर यहाँ पे मैसेज को जनरेट करना है इसके साथ, द एरिया ऑफ सर्कल अप्लाई राइट कर सकते हो, द एरिया ऑफ सर्कल डबल कोट्स प्लस एरिया, दोनों को क्लोज कर दो आप। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम डिजाइन हो गया। इज दैट क्लियर? इट्स वेरी इजी। जब भी हम एरिया ऑफ सर्कल का बात करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल में क्या है? द फॉर्मूला इज योर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द वैल्यू ऑफ पाई। एवरीबडी इज नोइंग। आप सब लोग जानते हो, आप खुद ही बहुत इंटेलिजेंट हो, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उसको बार बार भूल जाते हो आप। ठीक है? तो जब भूल जाओगे तो आपको बताने की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे। ठीक है? तो अब आपने क्या किया? एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल के केस में क्या है? हमें रेडियस एंटर करना है, तो हमने रेडियस एंटर कर दिया। इज दैट क्लियर? नाउ द फॉर्मूला इज दैट pi r square. So we are knowing the value of pi, that is your 22/7 or 3.14 into r into r. अब जो रिजल्ट होगा वो हमारे एरिया में डिस्प्ले हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम एनीवन? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं है? You will have, then you can message me. Fine? Now get ready for the next program. Write program in Blue Java to find average of any three number. Average of any
3 number. It will be your 4 program. Program number 4. Write program to find average of any 3 number. Of any 3 number. It's very easy. क्या मेथड होता है? सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दोगे, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे उनसे डिवाइड कर दोगे. अगर एवरेज ऑफ 2 नंबर रहता है तो a प्लस बी करते हो, डिवाइडेड बाई 2 कर देते आप. अगर एवरेज ऑफ 3 नंबर्स है तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3. इट्स वेरी इजी. तो आप डिजाइन करो इसको, क्लास एंड गिव द एवरेज. फाइन. क्लास नेम हमने क्या डिफाइन कर दिया? एवरेज. आई हैव गिवन द क्लास नेम एवरेज, ओपनिंग ब्रेसेस, public void main. Here we will give 3 variables. So I have given integer a comma integer b comma integer c. Okay. कभी कभी एवरेज हमारा डेसिमल्स में भी आ सकता है, फ्रैक्शनल में भी आ सकता है. तो उस केसेस में आप फ्लोट डिफाइन कर दोगे या डबल डिफाइन कर दोगे. क्लियर है? यहां पे आपने बना दिया. अब हमें क्या करना है? एवरेज फाइंड आउट करने के लिए. सो अगेन वी विल हैव टू टेक इंटीजर एवरेज. ओके. केवल हम अभी इंटीजर पार्ट को कंसीडर करते हैं. आप इसके जगह पे अगर फ्लोट जाना चाहते थे या डबल जाना चाहते थे तो आप लिख सकते थे यहाँ पे डबल a कॉमा डबल b डबल c, या फ्लोट a कॉमा फ्लोट b कॉमा फ्लोट c. क्लियर है? अगर आप डेसिमल में भी आउटपुट चाहते हैं तो यहाँ पे इस केसेस में आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे फ्लोट एवरेज लिखना पड़ता है या डबल एवरेज. इक्वल टू व्हाट वी हैव मेथड्स टू फाइंड आउट द एवरेज. आप सबको आपस में ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी, और डिवाइडेड बाई किससे? थर्ड नंबर ऑफ टर्म्स. तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो. क्लियर है? अब हमारा रिजल्ट किसके अंदर है? एवरेज के अंदर है. किसके अंदर है? आप इसके जगह पे डबल भी यूज कर सकते हो. अब किसके जगह पे है, किसके अंदर है हमारा रिजल्ट? एवरेज के अंदर है. तो आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन द एवरेज इज प्लस, और आप यहां पे पूरा वेरिएबल दे दो AVERAGE. तो आपका ये जो प्रोग्राम होगा वो किसी भी 3 नंबर, किसी भी 3 नंबर्स के एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए लिखा गया है और आपका प्रोग्राम प्रिपेयर हो गया. इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ एनी 3 नंबर. व्हाट वी हैव मेथड, वी विल ऐड ऑल दोज नंबर्स एंड वी विल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स ऑन टोटल नंबर्स. 3 से डिवाइड कर दिया. इज दैट क्लियर? सो वी हैव सीन टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर, area of circle, and average of 3 numbers, and to print the first program was to print any kind of message in blue Java. Now student will have next program, and that program is about to find out area of triangle. Area of triangle. Clear? So we have 2 methods to solve this problems, to solve these programs. First formula you guys are knowing, that is your 1 by 2 into base into height. Second, we have by using Heron's formula, where we calculate first semi-perimeter, that is your s equal to a plus b plus c by 2, and in square root s into s minus a into s minus b into s minus c. Is that clear? So if you want to see the both techniques, I am going to tell you. Is that clear? Next programs will have write program to find area of triangle. Area of triangle. It's a simple program I am telling you. And once you will go through the practice, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से प्रोग्राम्स आपको ब्लू जावा में डिजाइन करना है. क्लियर है? राइट प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? जनरली आप जानते हो 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट.
एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले ट्रायंगल का, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इसमें कितने साइड्स होंगे, हाँ 3 साइड्स होंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले इसका हम सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और इसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला। ओके, ये हीरोन्स फार्मूला है एंड जनरली आप इसको यूज करते हो। तो मैं दोनों टेक्निक आपको बता दे रहा हूं कि कैसे आपको यूज करना है। Now student, pay attention. As we know that we are going to find out the area of triangle. So we'll write first class triangle. Okay, class triangle, public void main. Fine. First I am going to tell you about the Heron's formula. Fine. Here we will mention double A, double B, double C. क्लियर है। ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स। कौन बोल रहा है 4 साइड्स भाई, 4 साइड्स होता है क्या, नो, वी हैव 3 साइड्स। कितने साइड्स है, 3 साइड्स है, ए बी एंड सी। क्लियर है। नाउ we'll calculate S. What we will calculate? S. So we will declare double S equal to, add all those numbers A plus B plus C, all the sides A plus B plus C by 2. Okay? By 2. Fine? ये हमारा S कैलकुलेट हो जाएगा। अब एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे डबल एरिया। आप इस तरीके से भी डिक्लेरेशन दे सकते हो या सारे वेरिएबल्स को आप यहीं पे डिक्लेयर कर सकते थे। कैसे उसको भी कर सकते थे मैं बता दे रहा हूं आपको। थोड़ा सा यहाँ पे मुझको एक वर्कआउट करना अलग से पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आप यहीं डिक्लेयर कर देते डबल एस कॉमा एरिया। ओके, फिर एस को आप कैलकुलेट कर लेते एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और एरिया अब आप कैलकुलेट करने जा रहे हो। तो एरिया का फार्मूला मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल आप यूज नहीं कर सकते, तो क्या तरीका होगा हमारे पास, व्हाट वी विल हैव द मेथड, स्क्वायर रूट के लिए वी विल हैव और वी हैव, यू कैन से दैट इज योर SQRT मेथड। Java provides some mathematical methods and these mathematical methods are math.sqrt। अब आप यहाँ पे मेंशन करोगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है। अब क्या होगा, जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी उसका स्क्वायर रूट ये निकाल देगा। तो अगर आपको स्क्वायर रूट मेथड यूज करना है जावा में, तो उससे पहले इसका एक क्लास है दैट इज योर मैथ, इसको समझ लो आप। मैथ के साथ ये मेथड्स है, मैथ के साथ क्या ये मेथड्स है, तो दिस इज योर क्लास नेम, मैथ विल बी योर क्लास नेम, इट इज योर बिल्ट इन क्लास। ये पहले से क्लास बनाया गया है, ठीक है। जैसे हम एक पैकेज यूज करते हैं जावा में, जावा डॉट, आप कह सकते हो जावा डॉट मैथ डॉट SQRT। तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी किसी क्लास को यूज करते हो तो क्लास नेम और उसके साथ हम मेथड्स का नेम डिफाइन करते हैं। मैथ डॉट SQRT, आगे पैकेजेस भी हम बताएंगे। तो ये एक क्लास हो गया, मैथ क्या हो गया, क्लास हो गया, और क्लास के अंदर हमारा क्या है, मेथड्स। तो मेथड्स कौन सा है, SQRT, और SQRT का मतलब क्या हो गया, टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसका करेगा, ये जो भी कैलकुलेशन होगा ना इसका ये स्क्वायर रूट निकाल देगा। अब आपको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो यहीं पे देते हैं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया। ओके, इस मैसेज के साथ आपका जो भी वैल्यू होता है वो कैलकुलेट होके आ जाता है। क्लियर है, इट्स वेरी इजी। वी हैव
one formula that is called Heron's formula. In Heron's formula, first we calculate the semi-perimeter of the triangle. इसके लिए formula क्या है अपने पास? S equal to a plus b plus c by 2. Add all the sides of the triangle and divide it by 2. उसको क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं. उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्मूला क्या बनता है? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. तो उस केसेस में आप स्क्वायर रूट तो अपने प्रोग्राम में डिजाइन नहीं करोगे, उसके लिए आपको मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिकल मेथड्स यूज करना पड़ेगा. और वो मेथड्स नेम क्या है हमारे पास? STRT है. क्या है? STRT है. तो जब ब्लू जावा में STRT को आप यूज करोगे तो उससे पहले उसका क्लास यूज करना पड़ता है. और क्लास नेम क्या है हमारे पास? मैथ है. तो मैथ डॉट STRT, उसके बाद एज इट इज आप उस फॉर्मूले को प्लेस कर दो. S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. अब आपका रिजल्ट जो है वो किसके अंदर स्टोर हो गया? एरिया के अंदर. तो एरिया को आपको क्या करना है? प्रिंट करना है, जैसे बाकी सारी वैल्यूज को आप प्रिंट कर रहे थे. इज इट क्लियर? अगर आपको नेक्स्ट वाला प्रोग्राम भी चाहिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो और थोड़ा सा आसान हो जाता है. आपको देख लीजिए उसको भी. उसे कैसे करना है? प्रोग्राम विल बी सेम. राइट प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. इसमें हम हीरोन्स फार्मूला को यूज नहीं कर रहे हैं. आपका फार्मूला यूज करते हो जनरली आप लोग पढ़ रहे हो. पब्लिक वाइड में आप यहां क्या दोगे? डबल बी कॉमा डबल एच बेस इंटू हाइट. नाउ व्हाट वी हैव? डबल एरिया. नाउ एरिया इक्वल टू वी हैव 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. आप ऐसे राइट कर सकते हो 1/2 इंटू बी इंटू h, or you may write 0.5 into b into h. Any problem? 1/2 0.5 into b into h. अब आपका रिजल्ट किसके अंदर है? एरिया के अंदर है. तो आप एरिया को क्या करोगे? प्रिंट कर दोगे. system dot out dot print ln you will get the output. The area is this area. Fine. अब ये क्या करेगा? आपका इस मैसेज के साथ द एरिया इज, आई थिंक यू आर नाउ यू आर गेटिंग व्हाई आई एम प्लेसिंग दिस मैसेज इन डबल कोट, बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग टाइप. इट्स अ स्ट्रिंग टाइप एंड एरिया इज योर डबल टाइप. इट विल रिटर्न द वैल्यू. वैल्यू क्या आएगा? जो भी यहां से वैल्यू हम पास करेंगे. सपोज टू बी आई हैव गिवन, हमने दे दिया बी की वैल्यू 5 और इसकी एच की वैल्यू 6 दे दिया. तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 5 इंटू 6. तो ये आपका 15 हो जाएगा आंसर. क्लियर है? तो इस तरीके से आपका आउटपुट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और यहां से आउटपुट प्रिंट हो जाएगा. सो हियर वी हैव डिस्कस द बोथ टेक्निक्स टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. इसी तरीके से आप एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो. जो भी करना है आपको उसका भी फॉर्मूला मालूम है. क्लियर है? तो इस तरीके से जितने भी एरियाज पे प्रोग्राम्स बन सकते हैं उसको आप डिजाइन करने की कोशिश करोगे. Okay, so now we will discuss about the one more important program that is related to interchange of any two number or swapping of any two number. Write program. Next program will be write program to interchange any two number. Any two number. Clear? Any two number. What we will do? Class interchange. आपको क्या करना है? क्लास और क्लास का नेम डिफाइन करना है. तो क्लास का नेम हमने क्या डिफाइन कर दिया? इंटरचेंज. नाउ पब्लिक वॉइड नेम. 2 नंबर लेंगे सिंपल. तो इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी. इससे अपना काम चल जाएगा. इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी. आपका काम तो वैसे भी चल जाता है कुछ ना तो भी हो गया. ठीक है? तो इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी. आप कहोगे फाइनल अरे सर क्यों पढ़ा ही रहे हो, आप छोड़ दो, जाने दो. इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? टी इक्वल टू ए. हियर टी विल बी मेंशन. ओके, आप टी को भी मेंशन कर दोगे. इंटीजर टी. T equal to A equal to B and B equal to T. फाइन. अब आप इसको प्रिंट कर देंगे और B की वैल्यू को. सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट ln। आप दोनों को एक साथ प्रिंट करना चाहते हो तो एक साथ भी कर सकते हो, और दोनों को अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी कर सकते हो। यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी और फिर दोबारा मैं b की वैल्यू प्रिंट करा दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में b। अगर एक साथ देना रहता तो आप क्या राइट कर देते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द आफ्टर इंटरचेंज डबल कोट्स प्लस a प्लस b। इस तरीके से दोनों की वैल्यू क्या होती, साथ में ही प्रिंट हो जाती। इस तरह से अगर आप दोनों को अलग अलग प्रिंट करना चाहते हो तो आप दे सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब देखो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि हमें a की वैल्यू रिटर्न करानी है, और a जो रिटर्न होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए इसको डबल कोट्स में नहीं देंगे। इसको एज इट इज हमने लिख दिया है, और इसको भी मैंने एज इट इज मेंशन कर दिया, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको ये भी फॉर्मेट पता चल जाए। ठीक है, और वहां पे क्या था, उस प्रॉपर मैसेज के साथ उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही थी। क्लियर है? वो काम आप यहां भी कर सकते हो, आफ्टर इंटरचेंज इस तरह से कर सकते हो, आफ्टर इंटरचेंज दोनों, या दोनों को एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। आप इसको एक बार प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं। अब ध्यान से समझ लो इस प्रोग्राम्स को कैसे क्या करना है। जैसे मान लो a और b की वैल्यू हमने दिया 5 और b की वैल्यू दिया मैंने 6, तो जब इंटरचेंज होगा तो a की जगह पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और b की जगह पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यही होना चाहिए ना इंटरचेंज पे, a की वैल्यू b हो जाए और b की वैल्यू a हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो a जब प्रिंट हो तो क्या प्रिंट करे, 6 प्रिंट कर दे, और जब b प्रिंट करे तो क्या प्रिंट करे, 5 प्रिंट कर दे। क्लियर है? अब उसके लिए हमने किया क्या है, एक तीसरा वेरिएबल यूज कर लिया है t। क्या यूज कर लिया है, t यूज कर लिया है। तो t इक्वल टू a दे दिया, इसका मतलब कि a की जो वैल्यू होगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, t के अंदर। तो a है क्या हमारा, पहले 5 है, पहले क्या है 5, तो t में क्या स्टोर हो गया हमारे पास, 5 स्टोर हो गया। क्लियर है? अब a इक्वल टू b हमने कर दिया, इसका मतलब कि b की वैल्यू किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, a के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो b है क्या हमारा, 6 है ना, तो 6 जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, a के अंदर। तो अब a की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। क्या हो गई, 6 हो गया। b इक्वल टू t, इसका मतलब t में है क्या, 5 है, तो 5 जब स्टोर होगा b में तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब a को प्रिंट करोगे तो a 6 प्रिंट करेगा, और b को जब प्रिंट करोगे तो b 5 प्रिंट करेगा। इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और आसान तरीका बता देते हैं। जैसे मान लो ये a है और ये b है, ठीक है, a ग्लास ऑफ वाटर है, यहां भी ग्लास ऑफ वाटर है, दोनों फुल है। अब a के पानी को b में डालना है और b को a में डालना है, यही करना है ना इंटरचेंज में। तो जब दोनों को आपस में करोगे तभी पानी ओवरफ्लो होके आ जाएगा बाहर। उसके लिए आसान सा तरीका क्या है कि एक तीसरा कंटेनर ले लो, इस तीसरे कंटेनर का नाम हमने क्या दे दिया है, टी दे दिया है, जो कि बिल्कुल खाली है। क्या है, खाली है, टोटली एम्प्टी। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए वाले ग्लास के पानी को टी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ध्यान से समझना इसको, ए वाले ग्लास के पानी को टी के अंदर डाल दे रहे हैं, क्योंकि टी तो खाली है ना। तो टी में आया क्या, एक ग्लास का पानी, जो एक ग्लास में पानी था वो किसके अंदर आ गया, टी में। इसका मतलब कि ए की जो वैल्यू है किसमें आ गई, टी में आ गई। क्लियर है? तो यही हमने काम किया, टी इक्वल टू ए। इसका मतलब कि ए की वैल्यू जो हम है किसमें स्टोर कर रहे हैं, टी में। तो ए है हमारे पास क्या, 5, पहले क्या है 5, तो टी में क्या स्टोर हो गया 5। अब यहाँ टी में क्या आ गया 5। क्लियर है? अब ए खाली हो गया ना, इसका पानी जब इसके अंदर आ गया, इसकी वैल्यू जब इसके अंदर आ गई तो ए खाली हो गया, ए एम्प्टी हो गया। तो अब ए के अंदर हम आसानी से बी को भेज सकते हैं। क्लियर है? तो बी की वैल्यू को जब ए के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी। इसका मतलब बी की जो वैल्यू है किसके अंदर स्टोर हो रही है, ए में। तो बी है क्या 6 है, तो जब 6 ए में आएगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब हमने लिख दिया। अब ध्यान से समझो, अब बी खाली हो गया, जब बी की वैल्यू ए में आ गया तो बी फ्री हो गया ना। तो टी में जो वैल्यू है उसको आसानी से बी के अंदर भेज सकते हैं, और टी में है क्या ए का वैल्यू, और ए में टी में क्या है 5 है। तो 5 जो होगा वो नेक्स्ट टाइम किसके अंदर चला जाएगा, बी के अंदर। तो उसके लिए क्या लिखना है, बी इक्वल टू टी। इसका मतलब टी की जो वैल्यू होगी वो किसके अंदर आ जाएगी, बी के अंदर 5। क्लियर है? तो जब ए प्रिंट होगा तो 6 प्रिंट हो जाएगा, और जब बी प्रिंट होगा तो 5 प्रिंट कर देगा। इस तरीके से दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, या इसी को हम लोग स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर कहते हैं। क्लियर?
सेम प्रोग्राम्स आई एम गोइंग टू टेल यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसमें तीसरे वेरिएबल्स का हम यूज नहीं करेंगे, जो कि हमारे पास t है। क्या है? t है। इसको भी समझ लीजिए आपको कैसे करना है इस प्रोग्राम्स को। कभी कभी ये प्रोग्राम्स पूछा जा सकता है कि राइट प्रोग्राम टू इंटरचेंज एनी टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। स्टूडेंट, it's your responsibility. You have to practice more and more for the different kind of program. Okay? आपको अलग अलग प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? हम उसमें असिस्ट करेंगे आपको। अभी आपने क्या करना है? इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, किसी भी दो नंबर को डिजाइन करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है, लेकिन इसमें दो नंबर को इंटरचेंज करने के लिए तीसरे वेरिएबल का यूटिलाइजेशन नहीं करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? a इक्वल टू a प्लस बी, b इक्वल टू a माइनस बी, a इक्वल टू a माइनस बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आफ्टर इंटरचेंज। आप मैसेज दे सकते हो यहाँ पे, आफ्टर इंटरचेंज a प्लस बी। देखो अब यहाँ पे मैंने ये दोनों को एक ही साथ यूज कर दिया है, ये दोनों क्लोजर है। इसमें थर्ड वेरिएबल का हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया है। इससे पहले वाले में क्या था? मैंने t को यूज किया था। अब आप इसको समझो। जैसे मान लो अभी हमने a की वैल्यू दे दिया 3 और b की वैल्यू फीड कर दिया 4। जब इंटरचेंज होगा तो 3 क्या हो जाएगा? b की वैल्यू हो जाएगी और 4 किसकी वैल्यू हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी। राइट? मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यही होगा ना? अब ध्यान से समझो थोड़ा सा। इफ आई हैव गिवन a इक्वल टू a प्लस बी, तो a प्लस बी की हम बात कर रहे हैं, तो a प्लस बी का मतलब क्या हो गया? पहले a की वैल्यू क्या थी? 3 था, तो 3 प्लस और b की वैल्यू क्या है? 4। यही है ना? अब इसको हटा देते हैं, अभी इंटरचेंज अभी नहीं करते हैं। अभी चलो समझो, a की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? 3 हो गया और b की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। तो 3 प्लस 4 करेंगे तो a में क्या नया वैल्यू स्टोर होगा? 7। क्या होगा? 7। हमेशा जो अपडेटेड वैल्यू आएगा ना, वही नेक्स्ट टाइम इसकी न्यू वैल्यू मानी जाएगी। क्लियर है? तो a प्लस बी जब कर रहे हैं तो 3 प्लस 4 की बात कर रहे हैं, और 3 प्लस 4 जब आपस में ऐड होगा तो उसका एडिशन क्या होगा? उसका समेशन क्या होगा? 7 होगा, और 7 किसमें स्टोर हो जाएगा? a में स्टोर हो जाएगा। तो a की नेक्स्ट टाइम वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो क्या होगी? 7 होगी। क्लियर है? अब b इक्वल टू a माइनस बी, b इक्वल टू a माइनस बी, तो a की अपडेटेड वैल्यू स्टूडेंट क्या है? 7, और b हमारा पहले से ही क्या है? 4 है। तो 7 माइनस 4 करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3। तो अब ये 3 जो है वो किसके अंदर स्टोर हो गया? b के अंदर। देखो स्टोर कर रहे हैं हम, 3 जो है वो किसके अंदर हो गया? b के अंदर। तो b की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। b की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई है। क्लियर है ना? और a का अपडेटेड वैल्यू क्या है? 7 है। ओके, नाउ आई हैव गिवन a इक्वल टू a माइनस बी। तो a क्या है? 7 है ना? और b नेक्स्ट टाइम अपडेटेड क्या हो गया है? 3 हो गया है। 7 माइनस 3 करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। अब इस 4 को हमने किस में स्टोर कर दिया? a में। तो a की नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू होगी अपडेटेड वैल्यू, वो क्या होगी? 4 होगी। क्लियर है? तो जब a प्रिंट होगा तो 4 हो जाएगा, और जब b प्रिंट होगा तो 3 हो जाएगा। देख लो इंटरचेंज हो गया। जब a प्रिंट होगा तो 4 हो जाएगा, और जब b प्रिंट होगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर है? इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लोगे आप अच्छे से। और ये सिंपल प्रोग्राम्स हैं, और इस प्रोग्राम्स में हमने टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर, एवरेज ऑफ 3 नंबर, एरिया ऑफ सर्कल बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया। दोनों मेथड्स मैंने बताया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और हीरोन्स फार्मूला जहां पे हमने बताया पहले स्टैंडिंग पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। s इक्वल टू a प्लस बी प्लस c बाई 2 in square root s into s minus a into s minus b into s minus c. After that, we have seen the examples on the interchange of 2 number by using third variable as well as by using without using third variable. तो इन सारे प्रोग्राम्स को आप एक बार प्रॉपरली चेक करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सिंपल प्रोग्राम्स भी बनते हैं, जैसे किसी भी सेल्सियस को आप फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर लो, उसको भी मैंने पहले बता चुका हूं मैं। आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो जो भी बेसिक प्रोग्राम्स हो सकते हैं उसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स को आप डिजाइन कीजिए। क्लियर है?
इसके बाद हम लोग कंडीशनल प्रोग्राम्स पे डिस्कस करेंगे, जहां पे हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट का यूटिलाइजेशन करेंगे. सो ऑल दोज प्रोग्राम्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट. Till then, you will enjoy these programs. Have a good day. Thank you.